اب اپنی کوئی بھی کار کو بنانا ہو پریمیم، گڈ لکنگ اور ڈیشنگ، تو پھر زین کار موڈیفائر ہے نا آپ کے ساتھ۔ یہاں آپ کو ملتے ہیں آپ کی کار کے لیے بہترین ایکسیسریز اور لیٹسٹ گیجٹ، جو کہ آپ کی کار کو دیتے ہیں وہ لک جو دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے، وہ بھی پریمیم کوالٹی کے ساتھ۔ تو پھر آپ کی کار کو خوب سے خوبصورت بنانے کے لیے ضرور تشریف لائیے زین کار موڈیفائرز، بسائڈ راج آٹو ٹائرز، گوشالہ روڈ، رائچور۔ رابطے کے لیے فون نمبرات ہیں 7676530588۔ ناظرین آداب، میں آپ کا میزبان ظہیر، آپ دیکھ رہے ہیں A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ بے سہارا، غریب اور پریشان حال افراد کی امداد کرنے کے لیے مشہور حیدرآباد کے HYC سلمان خان کا رائچور میں شاندار پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ یہ پروگرام رائل فنکشن پیلیس میں رکھا گیا تھا، جس کو خطاب کرتے ہوئے HYC سلمان نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات کافی تشویشناک ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، معاشی طور پر ہمیں نقصان پہنچا کر مسلم طبقے کو پریشانیوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایسے میں نے ارادہ کیا کہ ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی پریشان ہے، ان کی مدد کرنے میں پہنچوں گا۔ اللہ کے فضل سے کئی لوگوں تک پہنچ بھی چکا ہوں۔ انہوں نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ وہ اپنی قوم کی ترقی اور مدد کے لیے کام کرے۔ اس پروگرام کے آرگنائزر اسامہ بن زید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سلمان بھائی جو نیک کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک تحریک ہے، ہم بھی ان کے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر سلمان بھائی ہمارا ساتھ دے تو رائچور میں بھی بہت کام کرنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ اس پروگرام میں کئی ایک پریشان حال افراد نے HYC سلمان سے اپنی پریشانیاں بیان کی، جس پر انہوں نے اپنا موبائل نمبر انہیں دیتے ہوئے حیدرآباد آنے کو کہا اور ان کو بھرپور مدد کرنے کا تیقن دیا۔ اس پروگرام کو رائچور یوتھ کریج نے منعقد کیا تھا۔ اس تنظیم کے نائب صدر اسامہ بن زید نے پورے پروگرام کو آرگنائزر کرنے میں مالی تعاون کے ساتھ کڑی محنت بھی کی۔ اس موقع پر رائچور یوتھ کریج کے صدر محمد ارشاد، جاوید حسین، نثار احمد عرف فروٹ خواجہ اور تنظیم کے دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، حوصلے اگر بلند ہو تو تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ سلمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آئے اور اپنے ضروری خیالات کا اظہار کرو۔ رائچور ٹیپو سلطان کے مرد مجاہدوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں پر نوجوانوں اور ہمارے سرپرست بزرگوں کو اور خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس چھت کے نیچے ہماری پردہ نشین بہنیں بھی موجود ہیں۔ بہت خوشی کے ساتھ اظہار کر رہا ہوں کہ آج رائچور کو آ کر میں آج حیدرآباد میں محسوس کر رہا ہوں۔ الحمدللہ مجھے رائچور میں ہوں بول کر محسوس نہیں ہو رہا ہے، میرا گھر حیدرآباد میں ہوں جیسا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی یہ محبت ہے، ایک طرف ہے، امت کے لیے ایک فکر ہے، دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اور آج ایک ایسا دور ہے جہاں پر ہم سب حالات سے واقف ہیں۔ آج سب کے ہاتھ میں فون ہے، اسمارٹ فون۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم سب واقف ہیں، سب منظر عام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں 2014 سے جب سے مرکزی حکومت بنی ہے، اس تاریخ سے لے کر آج کی تاریخ تک بھی کچھ نہ کچھ سازشیں، کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو لے کر کچھ باتیں کی جاتی ہے، ہم کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک کوششیں کی جاتی ہیں، مگر ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ان طاقتوں کو جواب دینے کے۔ آج ہم دیکھتے ہیں 2014 سے کس طرح سے سیاہ قانون بن رہے ہیں،
किस तरह से हमारे मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हमारे मदरसों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हमारी बहनों को बेपर्दा करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हमारे इबादत गाहों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हमारे ताजरीन को जो तिजारत करते हैं, जो बड़े बड़े तिजारत करने वाले हैं, उनके तिजारतों को खींचने की कोशिश की जा रही है। सब मंजर आम है। कभी तो ये लोगों को हमारे पहनने से तकलीफ होती है, कभी तो इनको हमारे नाम से तकलीफ होती है, तो कभी ये लोगों को दाढ़ी से तकलीफ होती है, तो कभी ये लोगों को टोपी से तकलीफ होती है। हद तो ये हो जाती है कि इनको खाने से भी तकलीफ हो जाती है और हम कुछ नहीं करते, सिर्फ दुआ करते हैं। अगर दुआ से ही अगर हर कुछ हो सकता था तो सब घर में ही बैठ के दुआ करते और अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर लेगा। मगर अल्लाह ने फरमाया कि दुआ के साथ साथ आप लोग कोशिश भी करो, आप लोग मेहनत भी करो। हर चीज दुआ से नहीं होता, थोड़ी मेहनत भी लगाना जरूरी है। अगर हम सिर्फ दुआ करेंगे अल्लाह तो हमारी मदद कर दे, अगर सिर्फ बैठकर सबर के नाम पर बुज़दिल इख्तियार कर लेंगे तो अल्लाह भी मदद नहीं करेगा। अल्लाह आपकी तभी मदद करता है जब आप हिकमत अमली करेंगे। इसका मतलब कि आप कोशिश करेंगे कि फिरका परस्त ताकतों को किस तरह से उनको जवाब दिया जाए। माशाअल्लाह यहाँ का जो मुझे जुनून जो दिख रहा है, जो मुझे आप लोगों के अंदर जो तड़प दिख रही है, मैं यकीन से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से इनकलाब आ सकता है इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है ये रायचूर के मैं जो नौजवानों को जो देख रहा हूँ, मुझे इसमें तड़प दिख रही है, एक फिक्र दिख रही है उम्मत के। आज हम देखते हैं कि एक हिजाब का मसला जो आप ही के सरजमी से उठा था कर्नाटका में, उडुपी शहर में, और मैंने वहां पर गया था। अल्लाह के फजल करम से शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि उडुपी में मैंने वहां के बहनों के साथ एक बहुत बड़े पैमाने पर रैली निकाली थी, एहतजाज किया था फिरका परस्त ताकतों को बताने के लिए कि हाँ, हमारी कौम में मर्द मुजाहिद अभी भी जिंदा है हमारी बहनों की हिफाजत करने के लिए। मैं उस दिन अहद कर लिया कि जो कौम के नौजवान गुमराही में, जो कौम के नौजवान नशे की हालत में गुमराह है, उनको ये नहीं पता कि उम्मत में क्या हो रहा है, कौम में क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं कि क्या हालत हो रहे हैं। मैं उस दिन अहद किया था कि मैं अपने बच्चों को, उम्मत के बहनों को, उम्मत के लड़कों को उनके हाथ में कलम दूंगा इंशाअल्लाह। उस दिन मैं अहद किया था। आज अल्लाह के फजल करम से कर्नाटका स्टेडियम में 3000 बच्चों के लिए स्कूल तामीर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और काम भी चालू हो गया है अल्लाह के फजल करम से। ये लोगों ने कोशिश की थी हमारी बहनों को बेपर्दा करने के लिए, मगर अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने एक ऐसी ताकत बनाई HYC, जहाँ पर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे दीनी तालीम होंगे, इंशाअल्लाह हमारे मदरसे होंगे जहाँ पर दीन और दुनिया की भी तालीम दी जाएगी इंशाअल्लाह, ताकि ये लोगों की हिम्मत ना हो हमारे बहनों के ऊपर आंखें डालने के लिए, हिम्मत ना हो इंशाअल्लाह। अगर ये अकेला सलमान ये काम कर सकता है तो मैं यकीनन मैं एक भरोसे के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर रायचूर के हजारों नौजवान कर सकते हैं इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं आगे चलकर आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आने का मकसद यही है कि कुछ ऐसे हालात है हमारे कौम में, हमारी उम्मत में, जो उम्मत के, जो कौम के जो नौजवान अगर गुमराह है, अगर कोई नशे में अगर मुब्तला है,
یقین جانیے وہ قوم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ میں نے ہر وہ ریاست کے دورے کیے ہیں، میں نے ہر وہ تکلیف دیکھی ہے۔ میں نے ریسنٹلی ایک اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ایک مسجد اور مدرسے کو شہید کر دیا گیا تھا، وہاں پر میں پہنچا تھا، دیکھے ہوں گے آپ لوگ، دیکھے ہوں گے۔ تو ایک مسجد اور مدرسے کو شہید کر دیا گیا تھا، پورے شہر پورے ایریے کو چھاؤنی میں تبدیل کر کر وہاں پر ہر پولیس کو تعینات کر کر ایک اللہ کے گھر کو شہید کر دیا گیا اور ایک مدرسے کو شہید کر دیا گیا اور ہمارے 6 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ جب میں وہ تصویریں دیکھا وہاں کے ہلدوانی کے، جب میں نے وہاں کے حالات دیکھے تو بہت تکلیف، میں سوچا یا اللہ اس تکلیف بھرے منظر تک مجھے پہنچا دے، اور میں نے دعا کی اور میں نے کوشش کی کہ میں وہاں تک پہنچوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور وہاں تک مجھے پہنچایا اور پہنچایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ جتنے فرقہ پرست طاقتیں ہیں سب کو مرچی لگی، سب کو مرچی لگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ صرف میں وہاں پر پہنچ کر جو حالات وہاں کے جو تھے وہ میں نے منظر عام کیے۔ 6 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، جس کے سینوں میں گولی ماری گئی، پیروں میں، پھسلیوں میں، سروں میں گولی ماری گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھ سے جو ہو سکتا تھا ان کے گھر تک پہنچ کر ایک ذریعہ بن کر اللہ کی مدد ان تک پہنچائی، اور تمام وہ RSS کی جو میڈیا ہے، جو گودی میڈیا ہے، ان کو مرچی لگ گئی، ان کو اتنی مرچی لگی کہ وہ لوگ سب نفرت پھیلانے لگے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک یہ سلمان ایک کام کر سکتا ہے تو یہ رائچور کے ہزاروں نوجوان بھی کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ حالات کے نازک وقت کو، یہ حالات کے نزاکت کو سمجھ کر، اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر قوم اور امت کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اس رائچور سرزمین رائچور پر کھڑ کر میں ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر ایک زمین مجھے ڈھونڈ کر بتاؤ جہاں پر میں 1000 بچوں کے لیے فری اسکول بناؤں۔ مجھے زمین ڈھونڈ کر دو، مجھے بتاؤ کہ یہاں پر اسکول کی ضرورت ہے، یہاں پر تعلیم کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ خدا کی قسم دوسرے دن سنگے بنیاد رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ 1000 بچوں کے لیے انشاءاللہ شروعات کریں گے، جن کے ہاتھوں میں ہم قلم دیں گے اور وہ قلم سے ہمارے شیرنیاں انشاءاللہ انقلاب لائیں گے، للکاریں گے فرقہ پرست طاقتوں کو انشاءاللہ۔ وقت ہے ہم کو تیار ہونا ہے، انقلاب اور ہونا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمیشہ سے ہر وہ سیاسی پارٹی آتی ہے اور آپ کے ووٹ لے کر چلے جاتی ہے، مگر کبھی یہ لوگوں کو تکلیف نہیں دکھائی دیتی، کبھی یہ لوگوں کو ایک ہماری پریشانی دکھائی نہیں دیتی، بس یہ لوگوں کو ہمارا ووٹ چاہیے۔ ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، ہمارے مسئلے مسائلوں کو اٹھانے والا، سوال کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ہم اتنے پیچھے، آپ یقین جانیے، میں نے جب ریاست کے جب میں نے دورے کیے تو مجھے ایک ہی چیز محسوس ہوئی، علم کی کمی، علم کی بھی کمی بہت ہے، اور ہمارا دشمن بھی چاہتا ہے کہ ہم گوار رہے، ہم پڑھے نہیں، ہم بس ایسے ہی جاہلوں کی طرح گھومتے رہے، ہمارے پاس کوئی ہم کو راستہ بتانے والا نہیں ہے، اور ہمارا دشمن بھی چاہتا ہے کہ راستے بتانے والا بھی کوئی پیدا ہی نہ ہو، ہمارا دشمن چاہتا ہے۔ مگر ہم اتحاد کو اگر مضبوط کر لیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ دشمن کے جو منصوبے ہیں، یہ دشمن کے جو ارادے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس جو کمی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کا ایک ایک نوجوان انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر خدمت کرے گا، اور اس رائچور کے سرزمین پر پہلی مرتبہ آیا ہوں،
اور اتنے نوجوانوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، میں الفاظوں میں تو بیان نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے اور ایک امت کا درد رکھ کر، ایک فکر رکھ کر یہاں پر آئے، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو ایک چیز یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ 2014 سے کتنے فسادات ہوئے، کسی کو اندازہ ہے اندازہ کسی کو؟ 2014 سے 150 فسادات ہوئے، کتنے؟ 150۔ اور یہ 150 میں کتنے شہید ہوئے ہمارے بھائی؟ کتنے شہید ہوئے؟ 1200۔ کتنے؟ 1200۔ ہے کسی کو فکر؟ کسی کا وہ بھائی تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، ہم کو فکر ہی نہیں۔ اگر وہ کسی کا باپ، اگر کسی کا بیٹا، اگر کسی کا بھائی ہوتا یہاں سے اگر جو موجود ہے تو تکلیف ہوتی نا، ہوتی نا؟ تو ہم وہ تکلیف کو زندہ کرو اپنے دلوں میں۔ وہ اپنا بھائی تھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کبھی ہم کو موب لنچنگ میں نام پر مارا جاتا ہے، جہاد کے نام پہ مارا جاتا ہے، نام پوچھ کر مارا جاتا ہے، کپڑوں کی بنیاد کو دیکھ کر مارا جاتا ہے، داڑھی دیکھ کر مارا جاتا ہے۔ حد ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، ایک صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ مگر اب انشاءاللہ اللہ ہم کو راستہ بھی دکھائے گا اور اس منزل تک بھی پہنچائے گا جہاں سے ہم تیار ہوں گے انشاءاللہ تعلیم کے میدان میں انشاءاللہ۔ یہ جو فسادات ہو رہے ہیں، ان فسادات کو اگر ختم کرنا ہے تو آپ کو تعلیم کے میدان میں اترنا ہوگا۔ جب تک نہیں ہو، آپ کو ایڈوکیٹ بننا ہوگا۔ پہلی چیز ہے ایڈوکیٹ بننا ہوگا، کورٹ کی عدالتوں میں جانا پڑے گا آپ کو، آپ کی لڑائی آپ کو خود کو لڑنا پڑے گا، تبھی جا کر آپ اپنی خود کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ ایسے کتنے بہنیں ہیں ہلوانی میں، آپ کو پتا ہے جیلوں میں رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے چل رہے تھے، 18 بہنیں ہلوانی کے جیل میں ہیں۔ جو رمضان گیا کتنے مہینے ہو گئے؟ کتنے مہینے ہو گئے؟ یہ رمضان ابھی جا کر کتنے مہینے ہو گئے؟ 2 مہینے 2 مہینے ہو گیا، ابھی بھی جیل میں ہے۔ ہماری مسجد شہید ہو گئی، ہمارا مدرسہ شہید ہو گیا، اور جیل میں کون لوگ ہیں؟ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ ان کو نکالنے کے لیے HYC کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آدھے 100 مہینے میں انشاءاللہ وہ بھی نکل جائے گا انشاءاللہ۔ میں وہاں کی جو حالات دیکھا تو مجھے معلوم ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہاں کیا حالت ہے، ہماری کون سی بہنیں وہاں پر جیلوں میں ہیں، کتنے بھائی جیلوں میں ہیں، ہم کو نہیں پتا، مگر کوشش چل رہی ہے ان بہنوں کو جیلوں سے نکالنے کی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے HYC کوئی تعارف کا محتاج نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں ایک مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، اور ہندوستان سے لے کر غازہ تک چرچے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہت ایسے منافق تھے، بہت ایسے منافق تھے جو رکاوٹیں کانٹے ڈالنے کی کوشش کی گئی، مگر جہاں پر اللہ کی طاقت ہوتی ہے ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آج HYC ان غازہ کے مظلوم مسلمانوں تک مدد پہنچا رہا ہے۔ ہر دن وہاں پر کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، جس کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہے اس کو ٹینٹ ڈال کر دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر بھی کام زور و شوروں میں چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا۔ مگر کچھ منافقوں نے کوشش کی تھی کہ اس غازہ کے کام کو بہت سارے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ نے وہ سب چیزوں کو ناکام کر دیا اور ہم کو کامیاب کر دیا۔ اور وہاں کے جو مظلوم تھے ہر دن دعا دے رہے ہیں، ہر دن دعا دے رہے ہیں کہ ہندوستان سے بھی مدد آئے گی۔ پہلی مرتبہ وہاں پر مدد آئی غازہ میں ہندوستان کے طرف سے، ماشاءاللہ پہلی مرتبہ۔ یہ HYC کا ایک کارنامہ ہے
जो सबकी मदद से हुआ। और मैं यहाँ पर मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक रायचूर यूथ करेज के नाम से एक तंजीम बनाई गई है। यहाँ पर मैं वादा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह यहाँ पर इल्म के मैदान में उतरेंगे इंशाअल्लाह। 1000 बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर बच्चों के लिए फ्री कपड़े दिए जाएंगे, फ्री बुक्स दिए जाएंगे और फ्री तालीम दी जाएंगी। और वहाँ पर रेसिडेंशियल का भी इंतज़ाम होगा। जो लड़के लड़कियाँ दूर से आती हैं तो उनको वहाँ पर रहने का इंतज़ाम भी किया जाएगा, खाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 बच्चों को इंशाअल्लाह। आप लोग जगह बताओ, हम बना देंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ पर रायचूर यूथ कॉलेज के जिम्मेदार होंगे इरशाद है और उसामा बिन जैद है और काफी सलीम भाई है, यज़दानी है, साजिद हुसैन है, सैयद अफाक है, साजिद नवाज है, जिलानी। तो खैर ये तो एक तंजीम है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मिलकर इसको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। अब ये रही बात स्कूल की, इंशाअल्लाह हम स्कूल तो यहाँ पर बना देंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर दूसरे भी मसले मसाइल बहुत हैं। आप लोग अपने जो भी मसले मसाइल है यहाँ पर एक ऑफिस रहेगी HYC जो RYC रायचूर यूथ कॉलेज की, आपके जो मसले मसाइल रहेंगे वहाँ पर आप रखिए इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की मदद से वो मसले मसाइल पूरे करेंगे इंशाअल्लाह, पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। ऑफिस का शांति कॉलोनी, शांति कॉलोनी रायचूर, मालूम शांति कॉलोनी का है? अच्छा, एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको रिलीज कर दो, एक कॉन्टैक्ट नंबर रिलीज कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग जो भी प्रॉब्लम है इंशाअल्लाह, जो भी है इंशाअल्लाह आप रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से वो पूरे करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर एक मकसद से आया हूँ कि उम्मत और कौम की फिक्र लेकर, और वो फिक्र यही है कि हम नौजवानों को दीन के तरफ लेकर जाए और उनको हम बताए कि जो रास्ता है वो रास्ते में इतने मतलब अल्लाह को राज़ी करने वाले माशाअल्लाह बहुत अच्छे काम हैं। आप लोग नंबर नोट कर ले, मैं नंबर बोल रहा हूँ, एक नंबर है 725-944, लिख लीजिए आप 725-944 7989 ये रायचूर यूथ कॉलेज का एक नंबर है। आप लोग सेव कर ले इंशाअल्लाह। जो हो सकता है इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों के हमारे जो वादे हैं इंशाअल्लाह वादों पर खड़ा उतरेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों का साथ चाहिए, देंगे ना साथ? देंगे ना भाई? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चाचा हाथ उठाए भाई, चाचा हाथ उठाए भाई, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो पूरे अगर हाथ उठाते तो बहुत अच्छा दिखता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए चाचा में जज्बा आज भी बरकरार है माशाअल्लाह। सलाम चाचा आपको, आपके जज्बे को सलाम चाचा, सलाम चाचा, 100 मरतबा सलाम, लाखों मरतबा सलाम आपको। तो हम हमारे सरपरस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जो सुनने आए हम नौजवान नस्ल को, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए, हम नौजवानों के लिए, सबके लिए। हम ये जो तंजीम चला रहे हैं ये हमारा एक इंसानियत के लिए काम है, जहाँ पर हम इंसानियत के लिए काम करते हैं। चाहे जो भी हो, कोई भी मजहब का मानने वाला हो, हम हर मजहब के लिए काम करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा रिसालत, आवाज दो, आवाज दो। देखो देखो
सुन सकते हैं आप लोग? तो हमारा रब जो है रब्बुल आलमीन पूरे आलम के लिए रब है। तो हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है कि हम हर वो इंसान के लिए काम करें जिसको हम इंसानियत कहते हैं, चाहे वो कोई भी मजहब का मानने वाला हो, जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई और कम्युनिटी का मानने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मियाँ भाइयों का दिन खुला है, सबके लिए दरबार खुला है। हमारे जहनों में नफरत नहीं, हमारे ज़बान में नफरत नहीं, ना हमारी सोच में नफरत नहीं। हमारे सोच में हो या हमारे दिल में हो या हमारी ज़बान में हो, अल्लाह के फज़ल व करम से हम सिर्फ मोहब्बत की फिज़ा पर हम भरोसा रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदुस्तान में जो फ़िरक़ावार ताकत है, जो इन मोहब्बत की फिजाओं को नफरत की फिजाओं में बदल दिए है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इन नफरत की हवाओं का रुख बदल कर इंशाअल्लाह मोहब्बत को ला लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत हो गई नफरत, बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, बहुत हो गई मंदिर मस्जिद। अब इंशाअल्लाह सिर्फ एक तरक्की होगी इंशाअल्लाह, जहाँ से इंसानियत उठकर बोलेगी बारे मोहब्बत, बारे मोहब्बत, बारे मोहब्बत इंशाअल्लाह। हम इतना जज्बा रखते हैं खिदमत का, एक जुनून रखते हैं इत्तेहाद का। इंशाअल्लाह मैं उन नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ जो नौजवान आज गांजे का नशा करते हैं, मैं उन नौजवानों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, मैं उन नौजवानों से मुखातिब हूँ जो शराब का नशा करते हैं, जो आज रील्स बनाकर टिकटॉक का नशा करते हैं, नाचने का नशा करते हैं, लड़कियों का नशा करते हैं। मैं उन नौजवानों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, खुदारा पलट जाओ अल्लाह की तरफ। आपको नशा करना चाहिए था कुरान पढ़ने का, आपको नशा करना चाहिए था नमाज पढ़ने का, आपको नशा करना चाहिए था अल्लाह को राजी करने का, आपको नशा करना चाहिए था गुनाहों की माफी मांगने का, आपको नशा करना चाहिए था उम्मत की खिदमत का। मगर वो नौजवान जो गुमराह है नशे में, वो नशे में से निकल जाओ इंशाअल्लाह। इन्क़लाब आ गया इंशाअल्लाह, आएगा इंशाअल्लाह। मैं उन नौजवानों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ जो नशे में है, जो उम्मत के नौजवान गुमराह है, जो उम्मत के नौजवान जो खलम नहीं पकड़ सकते, जो उम्मत के नौजवानों को तो फिक्र ही नहीं, जो उम्मत के नौजवानों को दर्द नहीं, उन बहनों का, उन माओं का, उन बुजुर्गों का, उन नौजवान भाइयों का, वो उम्मत के नौजवानों को अगर फिक्र नहीं तो याद रखो वो कौम को बर्बाद होता हुआ कोई नहीं रोक सकता। अगर उम्मत को ताकत बनाना है तो वो नौजवानों को फिक्र करना जरूरी है। करेंगे फिक्र? आवाज नहीं आ रही? क्या बात है, अब आई आवाज और जोर से करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दिल्ली तक चले गए आवाज, दिल्ली तक चले गए। अच्छा, सब बोलते हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में भाई नहीं है ना भाई। हम सबकी इंसानियत कम कर देना भाई, चाहे वो कोई भी मजहब का मानने वाला, हिंदू खतरे में है नहीं है ना। अगर हिंदू खतरे में तो हम बैठते शाहनवाशा लगाकर इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे, वो मुसलमान है, करेंगे ना। इंशाअल्लाह दिल्ली तक जाना आवाज खतरे में हिंदू जोर से। अच्छा, हमारी हिंदू बहनों का मंगलसूत्र खतरे में है। अच्छा, हमारी बहन अगर बोली मेरा मंगलसूत्र खतरे
खतरे में तो मेरा भाई जाएगा नहीं जाएगा बचाने, जाएगा ना? तो बताने की बात, अगर हिंदू खतरे में है, वाकई खतरे में ये लोग बोल रहे हैं, तो अमित शाह का बेटा जैसा आरएसएस वीएचपी ज्वाइन नहीं मिलेगा, करना था ना? बीसीसीआई का प्रेसिडेंट नहीं बने उसको, नहीं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट नहीं बने उसको। फिर अगर हिंदू खतरे में है तो उसको आरएसएस ज्वाइन हो जाना था, अगर हिंदू खतरे में है तो वीएचपी ज्वाइन हो जाना था, अगर हिंदू खतरे में है तो कर्णी सेना ज्वाइन हो जाना था, अगर हिंदू खतरे में है तो हिंदू सेना ज्वाइन हो जाना था, अगर हिंदू खतरे में है तो विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन हो जाना था। अगर तू हिंदू खतरे में है बोलकर हिंदुओं को खतरे में डाल दे रहा। अच्छा खुदा की कसम, अगर हिंदू खतरे में है तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ के जितने नौजवानों से मैं जो मुखातिब हो रहा हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से ये बोल रहा हूँ, साथ में खड़ेंगे ना हिंदू भाइयों के, खड़ेंगे ना? दिल्ली तक जाना ये आवाज, हाँ ये मुसलमान सबके साथ खड़ा है इंशाअल्लाह। मजलूमों के साथ खड़ना ही इंसानियत है। और हमारे अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि इंसानियत के लिए काम करो, इंसानियत के लिए काम करो। वो रब पूरे आलम के लिए है, रब्बुल आलमीन है। अरे हम कौन होते हैं मज़हब में बंटने वाले हैं? तो हम इन फिरक़ों को इंशाअल्लाह, ये लोग नफरत की बोल बोलते हैं और हम मोहब्बत की बोल बोलकर इंशाअल्लाह ये लोगों को जवाब दे देंगे। और तारीखारी नारेशन की डेट की क्या तारीख है? 4 को टाटा जोर से मियारी 4 तारीख को इंशाअल्लाह मोहब्बत से जवाब देंगे। ये लोग गड़बड़ करने तो कितनी करते हैं, इंशाअल्लाह अपनी उंगली से उंगली कर देंगे लोग, उंगली से उंगली। वो हमारे पास तीर का भी बहुत चला तीर का, तीर को बताएंगे 4 तारीख को, 4 तारीख को खाली तीर का जवाब देंगे। तीर बताएंगे 4 को तीर, ऐसा तीर रहेगा इंशाअल्लाह। फिर दिखेंगे नहीं तो खिदमत में आ जाता हूँ, फिर खिदमत इंशाअल्लाह सब खिदमत करेंगे, मिल के करेंगे। और मैं वादा करके जा रहा हूँ, मेरा वादा, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ। भाई वो टक्कर जाने वाले थे, जो बोलता हूँ वो करता हूँ। जमीन बता दो, स्कूल बना देंगे इंशाअल्लाह। जहाँ पर हमारी बहनें हिजाब में आएंगी इंशाअल्लाह, हिजाब में, जहाँ पर किसी को भी रुकावट नहीं रहेगी, मेरी बहनों को तकलीफ नहीं होगी इंशाअल्लाह। मेरी बहन रुआब से शान से आएगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप साथ देंगे। तो क्या बात है, अब आप लोगों के अंदर करंट आ गया तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर के जिम्मेदार है, मैं आप लोगों को कांटेक्ट नंबर भी दिया हूँ। ऐसे बेबाकी से ऐसे खुले में बात करने वाले बहुत कम हैं मेरे भाई, बहुत कम है। मैं आप लोगों को कांटेक्ट नंबर दे दिया, नाम दे दिया और ऑफिस की जगह भी बता दिया। आओ खिदमत करते हैं इंशाअल्लाह। हजरत अली का फरमान है, जिसके कोई दुश्मन नहीं उससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं। दुश्मन होना भी एक सच्चे मोमिन होने की अलामत है। तुम्हारे भाई को नहीं रोके, कितना रोके, किस रास्ते से जाते राजा, कैसा जाते राजा, कैसा मदद पहुंचाते, कैसा खिदमत करते। अरे मुनाफिको, जिस तरह से मेरे अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रास्ता बताया था ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ता बताया था ना,
अलैहिस्सलाम को रास्ता बताया था ना। अरे मैं रसूल अल्लाह का उम्मती हूँ, क्या मेरा अल्लाह मुझे रास्ता नहीं बताएगा? बिल्कुल बताएगा। मुनाफिकों याद रखो। अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हमने कोशिश की, अल्लाह ने कामयाब किया, अल्लाह ने कामयाब किया, और हम कांटों पर चलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं 5 सालों से कांटों पर चल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी ये हक के रास्ते पर चलो। तकलीफ होगी, अल्लाह ने फरमाया कि आप जब हक के रास्ते पर चलेंगे तो तकलीफें आएंगी, लोग बदनाम करेंगे, लोग इल्जाम लगाएंगे, मगर आप अगर सही हो तो रुको मत, अल्लाह कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। करेंगे साथ। हक का रास्ता कामयाबी का रास्ता है। बहुत सुकून है आखिरत में। घर अपना कहाँ पर है? कितना है अपने? कितने गज का घर है? 2 गज का घर है। उसकी तैयारी करना है अपने को। 3 सवाल है खबर में। तैयार है? तैयार है खबर के सवाल के? मन रब्बुका, मन दीनुका, मन नबियुका। तैयार है? वो खबर में जवाब देने के लिए वो अंधेरा होगा जहां पर हमारा भाई नहीं होगा, हमारे वालिदैन नहीं होंगे, ना हमारी बहन होगी, ना हमारे रिश्तेदार होंगे, ना हमारे दोस्त होंगे, कोई नहीं होगा, सिर्फ आप रहेंगे। जो सवाल होगा और आप जवाब देंगे। जवाब देंगे सोच लो इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इन फ़िक़ा परस्त ताक़तों से हिफाजत अता फरमाए, और जो बुरी नज़र रखे हैं हमारे इतिहाद पर, अल्लाह वो बुरी नज़र करने वालों को तबाह बर्बाद कर दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नस्ल जो बढ़ रही है, अल्लाह इस नस्ल को इतना बुलंदियों पर पहुँचा दे कि जो एक सलमान जो मेहनत कर रहा है, यहाँ पर एक हज़ारों ऐसे नौजवान पैदा हो जाए जो खिदमत करने निकल जाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक नारा तकबीर, 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 तकबीर। इजाजत दीजिए, वक्त भी हो चुका है, तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। आप लोग कुछ अगर आप लोगों के दरमियान में इंशाअल्लाह अगर कुछ तकलीफें हैं तो बताइए, इंशाअल्लाह मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई कुछ बोलना चाह रहा है यहाँ पर? मैं माइक देता हूँ, जरा आप आगे माइक दो, इनको आगे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए। मैं हार्ट पेशेंट हूँ जी। मेरे की दुआ बंद है जी। मैं माइक ऐसा रख दो, माइक पकड़ लो। इलाज करा के आया जी। तो लोग 3 बार करने बने जी। 4-4.5 लाख रुपये खर्चा करके आया हूँ। अच्छा अभी 3 बार बने। अच्छा, अल्लाह खैर करे। तो ऑपरेशन के लिए बोले हो। कहाँ रहते आप? सिर्फ पकड़ा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। मैं अदरी में भी आया था। होना क्या है? क्या बोले? आपको जरूरत क्या है? यही है इलाज की जरूरत। ठीक है, आप हैदराबाद आते हैं? हाँ बोले तो आप मैं वहाँ पर इलाज करा दूँ आपका। इंशाअल्लाह। चलिए मैं वादा कर रहा हूँ। बहुत जरूरी लोगों की परेशानी और जिसकी परेशानी है मैं लीडर नहीं, मैं नौकर हूँ हुकूमत का। मैं हुकूमत का नौकर हूँ, लीडर नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम भैया। जवान साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम भैया। हाँ साहब बोलिए। भैया है जी। जिनके 2 किडनी हो चुके हैं। अच्छा। अच्छा। 18 लाख की जरूरत है। अच्छा। मैंने एक वीडियो बनाया जी। इसमें 30 पे 2000 पे कलेक्ट हुए। अच्छा। इसके आगे आप मैं वीडियो बनाने के बाद आगे फंडिंग नहीं हो रही। आपको प्रॉब्लम क्या है? आपकी किडनी का है? अच्छी बात। पेशेंट बेंगलोर में है। हाँ। तो ये वही है रात में आप आगे बोल को रात में बेंगलोर से यहाँ क्या उम्र है पेशेंट की? ये
36 है। अच्छा, अभी वहाँ पर ज़हर इलाज है, इलाज चल रहा है उनका? अच्छा, हॉस्पिटल में घर पे? हॉस्पिटल में। वो एक्चुअली 2 लाख रुपए दूसरी जगह चंदा करके ले लिए थे। लेने के बाद हॉस्पिटल में बताने के बाद किडनी का ट्रांसप्लांट 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए की वजह से वो वापस पैसा नहीं रहने की वजह से वापस घर को आ गए थे जी। मैं फिर उनके घर पे अटेंड करके वीडियो बना के आने के बाद अभी थोड़ा हिम्मत आ गई। अभी 3.5 लाख रुपए टोटल कलेक्ट हो गए। अभी होना कितने? अभी 15 लाख की जरूरत है भाई मैं करा दूँ। मेरा वादा है। बोलिए बोलिए। खामोश हो जाओ। मेरी बहन कुछ बोल रही है, आप लोग सुनना चाह रहे तो खाम पड़ जाओ। बोलिए बाजी बोलिए। मैं हैदराबाद को आई थी आपके पास, आप नहीं मिले या कुछ मिले थे। हमारे को 16 बजे को वहीं थे। मेरे शोहर को और मेरे को कुछ तो भी काम लगा को दे दिए। हमें बहुत तकलीफ। क्या करना चाह रहे हैं आप? काम क्या करना चाह रहे हैं? हमारे कलर की दुकान तो लगाओ या तो किराने दुकान, कुछ तो भी एक इंतजाम करो। हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, हमारा कोई भी सहारा नहीं है। सलमान भाई, मैं आपके पास वहाँ पे कई 2 दिन थी। मैं जब बोला मैंने फिर करना चाहिए। मैं 2 दिन के लिए तो अच्छी है। मेरे शोहर भी कुछ काम नहीं कर सकते, उनकी भी थोड़ी मजबूरी है, तकलीफ है। मेरी हेल्थ का सलमान भाई मैं बहुत मैं बहन को दुकान डाल के दे रहा हूँ भाई। डन बहन, बेफिक्र रहो। नहीं रोने की जरूरत नहीं है आपको, रोने की जरूरत नहीं है। नहीं बस आपका नंबर दे दो। मेरे बच्चों की स्कूल कोई बात नहीं, आप नंबर दे दो। ईशा नंबर ले लो, नंबर ले लो। आप लोग थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। क्या बोलिए? आप लोग उधर देख ले दो जी। आई अगर जाते हो घर जाते हो खाली प्लीज आप लोग बोलते हैं को भी देख ले दो ना जी भाई। चलो ना बड़े भाई, मेहरबानी आप लोग उधर जाइए ना भाई। चलो जी बड़े भाई उनके दिल में दर्द है, क्या हमारा काम नहीं उनकी तकलीफ को दूर करना है ना? है ना? तो अल्लाह के फजल करम से एक अल्लाह जरिया बनाया ना। तो मैं चाहता हूँ कि इस रायचूर में भी हजारों नौजवान निकलकर इस तरह से काम करें। सलमान भाई लेडीज है बात। सलाम सलमान खान, हाथ मुबारक, हाथ मुबारक, मुबारक मुबारक। हाँ, अरे मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे क्या तो भेज दो। अगर मैं गाँव जाता हूँ, खरा को गाँव जाता हूँ, हमारे घर वाले होटल जाते हैं। हाँ, मदद करो, बहुत शुक्रिया हुआ, बहुत ये दुआ देते तुम्हारे को। आमीन इंशाअल्लाह। मुबारक करे इंशाअल्लाह। कुर्बानी आमीन करे। मैं जो नंबर दिया हूँ आप लोगों को, मैं जो नंबर दिया हूँ वो नंबर पर कॉल करें। इंशाअल्लाह जो हो सकता है हम पूरी कोशिश करेंगे और काम करने की। इंशाअल्लाह मैं जो नंबर दिया हूँ मैं जो नंबर दे रहा हूँ आप लोगों को, वो नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। मैं फिर एक बार नंबर दे रहा हूँ। मैं आपका नंबर लिखो।
7259447989। मैं फिर एक बार आप लोगों को फिर एक बार बोल रहा हूँ 7259447989। अब ये रायचूर यूथ करेज का ऑफिशियल नंबर है, आप लोग इस नंबर पर कॉल करें। जिसको माइक नहीं मिला है वो लोग अपनी तकलीफ लेकर वहाँ पर आए, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से वो खिदमत की जाएगी। आप लोग इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह इस बार से जो मसले नेक्स्ट यहाँ में जो मजमा जमा हुआ है आज भी ईमान जिंदा है में और यकीन सलमान भाई यहाँ पर जिस मकसद से हमने बुलाया है इंशाअल्लाह एक इतिहाद बनाना है सिटी में और यकीन हम इस मजमे को देख कर कह सकते हैं कि आज भी ये नया जितने भी अल्लाह हमारे को फुल सपोर्ट के साथ कर रहे हैं। और यकीनन मैं आप लोगों के साथ एक नारा करूंगा, नारे तकबीर से बोलो भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इंशाअल्लाह आप लोग आगे करें HYC के टीम को जहाँ फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है हमें दुआ करना चाहिए कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह फलस्तीन को आज़ाद हो। और यकीनन बेशक हम सब कभी भी अगर टाइम हो तो ताजुद की नमाज पढ़े और अल्लाह से दुआ करें कि यहाँ पर हम सुकून से जी रहे हैं, वहाँ का हाल बहुत ख़राब है, बहुत तकलीफ होती है। उन मुसलमानों को देख कर, उन मजलूम बच्चों को देख कर, उन मासूम बच्चों को देख कर, 3-3 महीने 4-4 महीने के बच्चों को देख कर जो जुल्म पैदा हो रहा है, यकीनन इस बात की शर्मिंदगी है हिंदुस्तान में हमें नहीं बल्कि हम एक इत्तेहाद जो बनाए HYC की तरफ से आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। रायचूर सिटी में इंशाअल्लाह हमारे रायचूर में एक इत्तेहाद बनेंगे, यकीनन आप लोग हमारे साथ हो तो आवाज दे नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा और हमारे सबर, हमारे भाई, हमारी जान, हमारी शान, हैदराबाद की शान, रायचूर की जान HYC सलमान भाई आज हमारे बीच में मौजूद है और आप उनको सुकून नहीं जैसा डिसिप्लिन मेंटेन करें। इंशाल्लाह आंध्रा में वहाँ गए थे, आंध्रा में ऐसा डिसिप्लिन था, बहुत क्राउड था। यहाँ का डिसिप्लिन भाई को बोले मेरे को बहुत अच्छा डिसिप्लिन है बोले तो एक मैसेज पहुंच गया भाई को, हैदराबाद को नहीं भाई को उसको जितने भी लोग आते राजा से मैसेजा करें, भाई राजा से मैसेजा करें, यकीन नहीं मानेगा मेरी बात को। भाई का ओपन करके अकाउंट जो रायचूर के लिए विजिट करने के लिए जो बातचीत हुई थी उस वीडियो में नीचे मैंने कमेंट पढ़ा तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं, वहाँ के लड़कियाँ ये कह रहे हैं कि जो भी सलमान भाई आ रहे उनका एक इस्तेमाल करें। और यकीनन मैं फख्र से बात करता हूँ, कह सकता हूँ कि यहाँ का जो मजमा मैं देख रहा हूँ ईमान आज भी हम लोगों में ताज़ा है और यकीनन रायचूर सिटी में इत्तेहाद पैदा करना है। हमारे को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इंशाअल्लाह आप लोग साथ है हमारे। आवाज दे नारे तकबीर, भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत। एंटरप्राइजेस लाए हैं ज़बरदस्त समर ऑफर और एक्सचेंज ऑफर जो कि पुरानी बैटरीज और यूपीएस के लिए रहेगा। 1200 वाट का SF साइन प्रो ऑल इन्वर्टर जिसकी कीमत एक्चुअली 7,813 रुपये है, वो अब सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपये में रहेगा, जबकि एक्सचेंज प्राइस 4,499 रुपये रहेगा। इसी तरह SF प्रो ट्यूबलर प्लस 150 AH की बैटरी की एक्चुअल प्राइस है 17,913 रुपये, जिसकी समर ऑफर प्राइस है 12,999 रुपये, जबकि एक्सचेंज ऑफर प्राइस है 9,499 रुपये। चूँकि मौसम गर्मा है इसलिए इंडियन एंटरप्राइजेस एयर कंडीशन के लिए भी ज़बरदस्त ऑफर लाए हैं। लाइट का 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर AC प्लस वी गार्ड प्लस इंस्टॉलेशन जिसकी कीमत होती है 62,999 रुपये। समर ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये इसकी कीमत रहेगी। तो फिर इन ऑफर्स का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाइए। इंडियन एंटरप्राइजेस ब्रांच ऑफिस शॉप नंबर 44306/1 BRB कॉलेज रोड ज़हीराबाद रायचूर और इसकी हेड ऑफिस है 12-11-107/16 HB कॉम्प्लेक्स गौशाला रोड रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर है 9538093989।